Session today. Right. Paper discussion. Okay. Chalo. Open your paper. We will discuss. Okay. I have, I think, sent the paper also on the group. Yeah. Susmita must have sent it to you. Paper. Yes, ma'am. I had sent it that day. The other day I had sent it. Okay. I'm checking. Yeah. टेढ़ा मेढ़ा पेपर है. पेपर सीधा स्ट्रेट भेजो ना. थोड़ा सा टेढ़ा है पेपर, मतलब उल्टा है. तो लैपटॉप कैसे उल्टा करूं मैं? Okay, 1 second. है ना, पेपर है ना, सब स्ट्रेट दो. बिकॉज 84 वाला उल्टा है. हाँ. Okay, सीधा 1 करके second. भेज दो. हाँ. और पूरा पेपर तो आया नहीं है, आधा आधा पेपर आया है. Yes, Susmita ma'am, I've sent. भेज रही हूँ. Okay, sure. Yeah, ma'am. Yes, received. Start now. हाँ, सारे क्वेश्चंस नहीं करने क्या? 1 2 3 थोड़े बहुत ही हैं. No, only from 46 to 90. हाँ, वही मैंने बोला. ठीक है, चलो. Disproportionation reaction. So what is disproportionation reaction, Neil? 1 second. ये रेडॉक्स में था ना? हाँ, ये था. Basically, one compound converts to two compounds, and that compound has to be in the medium So, oxidation state. yes. So HClO4 है. इन HClO4 क्लोरीन है, वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 में. तो उसके बाद में वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती है, इसीलिए इट कैन नॉट गो disproportionation reaction.
where the Okay. same element is both oxidized and reduced. So among these given options, HClO4, it does not show disproportionation reaction. Okay. Next, the strongest reducing agent among lithium, sodium, potassium and cesium. See, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, ठीक है ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो ही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. Reduction potential means it has got low tendency to gain electrons. Lithium can easily lose electrons. And since it can lose electrons, so it can reduce other elements when it forms a compound. So therefore, lithium is the strongest reducing agent. Got it? Oh, got it. Now next is in iodometric titration. What is titration? Aromatic titration with ice. Basically, Yes. it is this. Basically, you go on adding one standard solution to an unknown solution till the mixture is perfectly as required. So in iodometric titration, the indicator which is used to detect the endpoint is starch. You know, in the process of photosynthesis, starch can be tested how? By iodine, right? Test for the presence of starch is by iodine. Okay? Okay, so starch will be the correct answer. Yes. Oh, So, how many moles of ferric oxalate will react with 1 mole of KMnO4 in acidic medium? So, basically, in this case, what do we see? In the case of redox reaction, in acidic medium, क्या हुआ है ये? KMnO4 है, वो रिड्यूस हो जाएगा. रिड्यूस हो जाएगा मतलब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. किसके अंदर? मैंगनीज के अंदर, Mn के अंदर. ओके, सो इसीलिए इसके अंदर में देखते हैं, आप बैलेंस करोगे रिएक्शन तो आपको क्या मिलेगा? इसका रेडॉक्स निकालो. इसका रेडॉक्स रिएक्शन बनाओ. हमने किया था ना रेडॉक्स रिएक्शन. हाँ, तो 49 का ना? हाँ.
Basically, answer will be 1/6 for the question. 1.6. Yes. So what you will say, 6 moles of KMnO4 are required. Right? Right. So this way you have to solve beta. Otherwise 48 का क्या लिखा है आंसर? 48 का सेकंड ऑप्शन स्टार्च. इसमें तुमने तो ये नो द एनर्जी स्टोर्ड ये वाला पूछ रही हूँ. Which page is that? 46, 47, 48. अच्छा हाँ ठीक है ठीक है. नहीं उसमें ऊपर था ना एनर्जी स्टोर्ड वाला. नहीं ठीक है. 50 का बोलो. 50 का मैंने ऑप्शन नंबर 4 डाला है. बोथ assertion and reason are false statements. कैसे? Basically, first statement is standard electrode potential of hydrogen electrode is taken as 0. तो ये वो statement false है. And this standard electrode potential of a half cell is determined with the reference to standard hydrogen electrode. वो भी हाँ. गलत है. So इसलिए फोर्थ ऑप्शन रहेगा. बोथ assertion and reason are false statements. कौन बोला? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज pH डिपेंडेंट. So standard electrode potential of hydrogen electrode is taken as 0. वो करेक्ट है. वो करेक्ट है. And standard potential of a half cell is determined with reference to standard half electrode. तो गलत है इसमें. अच्छा. So that will be the first option or the second? तुम ये पहले बताओ तुम्हें इसमें गलत क्या लगा? मुझे लगा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड इज टेकन एज 0 वो पार्ट ये रहेगा थोड़ा गलत. एंड देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इज डिफाइंड एज 0 वोल्ट्स. तो वो क्या एक रेफरेंस होता है. और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम बोल रहे हैं ऑफ अ हाफ सेल इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये बहुत ब्रॉड हो जाता है. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी हाफ सेल है वो डायरेक्टली हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से मेजर करेंगे? नो, ये करेक्ट नहीं है. नहीं तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स है, हम क्या यूज करते हैं? डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. तो मेजर पॉइंट क्या है इसके अंदर की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज होता है फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट इट इज नॉट ऑलवेज डायरेक्टली dependent or used in various electrochemical cell measurements. Got it? So गॉट इट. हाँ तो इसका आंसर assertion is true but reason is false. Okay? ओके. चलो next. In bleaching powder CaOCl2 the oxidation state of chlorine atoms is or are. मैंने लिखा है -1 +1. Yes, okay. ठीक है. 52. In all of its compounds oxidation state of oxygen may vary from, मैंने लिखा है ऑप्शन नंबर 3 +2 to +6. The oxidation state of oxygen typically ranges from 0 to -2. It is 0 to -2. हाँ राइट. 0 to -2. Yeah, 0 to -2. ओके. ओके.
फिर उसके बाद 53 मैंने सॉल्व नहीं किया था. I'll just read the question. Oxidation numbers of P, Q, and R are +3, +4, and -2 respectively. कौन सा क्वेश्चन? 53 नेक्स्ट पेज पे. 52 नेक्स्ट पेज तुमने मुझे कौन सा दे दिया? ये 84 85 दे दिया. हाँ? रुको, नहीं, अभी अभी जो भेजा है. हाँ वही देख. नहीं, one एक second. यार, नहीं, मैंने भेजा है दूसरा. हाँ 52 की भाई, बिल्कुल. इसमें जो आ रहा है ना वो 84 वाला आ रहा है, क्योंकि मैं खुद सीरीज में खोल रही हूँ, मैं क्यों इधर उधर खोलूंगी. मैंने सीरीज में भेजा है इसलिए. ये 62. फिफ्टी थ्री, हाँ, और लास्ट में है 53. बोलो. हाँ, बोलो कैसे करना है इसको. वही वही नहीं आ रहा था 53, इसलिए सॉल्व नहीं किया मैंने. अच्छा, चलो. अब इसके अंदर में क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P, Q and R -3, +4 and -2. Possible formula of the compound is P3. तो देखो, the total positive charge of a metal cation must be equal to the negative charge of the non-metal in a neutral compound. So first of all, इसके अंदर में हमको क्या करना है. चलो, सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर P क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P है +3. So number of atoms in P will be equal to 3. Oxidation है +4. So number of atoms will be is equal to 4. Now oxidation number of R is -2. So the number of atoms in R compound will be 2. Now to balance the charge, the compound must contain 2 atoms of phosphorus, 3 atoms of Q and 6 atoms of R. Therefore, the possible compound will be P2, Q2 क्रॉस होता है R3, RAP3. Okay, so this will be the possible formula of the compound. हमको ऑक्सीडेशन नंबर देखना है. ऑक्सीडेशन नंबर से पता लगता है कि 3 है, अगर 4 है तो 4 है, R -2 है तो कितना है? नंबर ऑफ एटम्स 2 है. तो हमको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पॉजिटिव शुड बैलेंस विद नेगेटिव. जैसे हम इसके अंदर करते हैं Na1+ और Cl1-, कैंसिल. तो इसके अंदर में ये R है, इसको भी हमको बैलेंस करना होता है ना. सो इसीलिए बैलेंस करने के लिए इधर P3 है, तो ये जो कंपाउंड है उसके अंदर में 2 एटम्स P का होगा, उसके बाद में 3 एटम्स ऑफ Q होगा. तो कितना हुआ? 3 2 6, और ये 6 एटम ऑफ R.
तो ये पूरा बैलेंस कर देगा। इसलिए इसका पॉसिबल फॉर्मूला क्या होगा, P2Q, 3 2 जार 6 और R क्या हो जाएगा, 3 3 जार 9। ओके, तो ये पॉसिबल फॉर्मूला होगा। ओके, नील, आर यू गेटिंग? Yeah, teacher, I'm getting. Do you mean P2, Q2 are 3 out of the bracket? 3 out of the bracket, that is. या क्योंकि जो आपने ऐसे लिखा है इधर उसका कुछ ऑप्शन नहीं है यहाँ। नहीं, इसके अंदर में यही मैं बता रही हूँ कि हमको अगर इसके अंदर में से ऐसे चेक करना है तो अब फाइनली इसके अंदर में हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, क्यों इसका, हाँ, इसका जो पॉसिबल फॉर्मूला है, इससे हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। मैंने क्या बोला कि R है वो कितना होगा, R है वो कितना होगा 3। देखो, टू, या तो ये देख लो 2 एटम्स ऑफ P2, ठीक है, 3 एटम्स ऑफ Q। तो यहाँ पे मुझे क्या चेक करना है कि Q2 है, लेकिन टोटल यहाँ पे 3 एटम्स है वो होने चाहिए। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे मुझे 6 करना है, R है वो 6 होना चाहिए। तो हम 6 कैसे करेंगे R को, ये मैंने तुमको दे दिया है। नहीं, ओके, ओके। थोड़ा 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 तुम्हारा मुझे वो बताओ। थोड़ा सा बता दो मुझे बस, एक हाँ, मैं छोटा, क्या करूँ? एक छोटा सा खाली लास्ट का तुम्हें मुझे बताना है और उससे आंसर आ जाएगा। मैंने तुम्हें इतना सारा गाइड कर दिया। So will it be the नहीं, ये अगर P2 है, 3 मुझे 3 एटम्स Q के फर्स्ट रखने हैं। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं। P2, P2 इसमें। अच्छा, ये भी अगर रिमूव कर दो, इस ये मुझे लग रहा है तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मुझे खाली अब इसी से बता दो क्या होगा हमारा। कोई ऑप्शन रहेगा, सेकंड ऑप्शन नहीं रहेगा, P3 है करके। हम्म, और उसके बाद Q का 3 होना चाहिए, Q Q2 नहीं हो सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं रहेगा। तो उसके बाद R की वजह से ही ऑक्सीडेशन नंबर प्रॉब्लम। से, हाँ, देखो ऑक्सीडेशन नंबर से हमको देखना पड़ता है। 3 का चार्ज है तो +3 डालेंगे, Q का चार्ज है तो +4 डालेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली या यूं देखो हमको कि इसके अंदर में जो R है वो -2 है। सो स्मॉलेस्ट होल नंबर ऑफ एटम जो हमको नेट चार्ज देगा वो क्या देगा, 0। क्या क्या नेट चार्ज होगा, 0, 2 एंड 3, बराबर, राइट।
0, 2 और 3 ये सबसे छोटा नेट चार्ज है। अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्मूला इस कंपाउंड का बनाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा इसके अंदर में? क्यू का चार्ज क्या डाला है? 4 डाला है। आर का चार्ज है -2। सो हमको पी क्यू आर का फॉर्मूला बनाना है, तो हमारा सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या जाएगा? देखो इसके अंदर में या तुम ऐसे कर लो, P2 QR2 Rap3। ये होगा कि नहीं होगा? या ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सबसे सिंपल। बट तुम्हारी बुक, तुम्हारे इसके अंदर में ऑप्शन ही नहीं है। हाँ वही। P2Q3 रैप ट्वाइस, नहीं, इसके अंदर में इसका आंसर यही होगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उस हिसाब से अपन कर दो, है तो कि नहीं? मतलब क्वेश्चन गलत है या तो क्वेश्चन आंसर? नहीं है, आंसर है। हाँ, वो उन्होंने कर दिया है, सीधा करो तो कोर आंसर ही आता है। ठीक है। ओके। सो ये अभी कैसे करना है ये फाइनली? ये P2Q, देखो इसको, या तुम्हारा एक ऑप्शन है ना ये वाला, एक सेकेंड, P2Q2R3, लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन रखेंगे तो हमारा ये तो 6 हो जाएगा, हम्म। है ना? हाँ। तो ये थोड़ा ट्रिकी हो रहा है। आंसर तो यही है इसका, P2QR2 ठीक है। थोड़ा ये है ट्रिकी, लेकिन यही आंसर होगा, क्यू। ओ, तो वो जो 54। आपने दिया हुआ आंसर वो लिख दिया मैंने। सो बेसिकली आई थिंक क्वेश्चन ही थोड़ा ये है, हाँ क्योंकि ऐसे कोई होता भी है। ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। हाँ होता एग्जाम है। में भी ट्राई किया था। ठीक है, ठीक। चलो तो ये 54 आ रहा है। 54 में आई थिंक मैंने एक्चुअली फर्स्ट वाला ऑप्शन डाला था, बट आई डोंट थिंक फर्स्ट ऑप्शन है। वो जल्दी जल्दी में डाला था, V2O5, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। देखो एक बात बताओ, ये जो भी टेस्ट दे रहे हो ना, ये टेस्ट के अंदर में ना तुम सबसे पहले तो ये कोशिश करो कि तुम्हारे आंसर्स करेक्ट हाँ हाँ। है ना, क्योंकि हाँ हड़बड़ी कर करके नहीं, बिकॉज अभी होता क्या है, बच्चे इसमें फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, वो सब नहीं लगाओ। अभी तुम सीखो आंसर्स लिखना, यानी जो आंसर करो वो करेक्ट करने की कोशिश करो, इसलिए हड़बड़ी तो करना ही मत। अब बताओ, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है वो मुझे बताओ। 1 सेकेंड में। Basically, it's a type of displacement reaction, जहाँ पे ये मोर रिएक्टिव मेटल सच एज हम्म। सोडियम, सोडियम को एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम्म। ऐसे सोडियम नहीं, मैग्नीशियम चलो, हम्म। देन इट रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। फॉर एग्जांपल हम्म। ऐसा कॉपर सल्फेट में कॉपर, सो हम्म। मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस द ये कॉपर इन द कॉपर सल्फेट, ओके। वैसा है। हम्म। तो जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो हमें कैसे पता लगता है क्या होता है?
जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो ऐसा कलर चेंज होता है और ये लिक्विड के प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। वेरी गुड। हाँ, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ये फर्स्ट फर्स्ट। करके दिखाओ, फर्स्ट करके दिखाओ। नहीं, क्योंकि मैंने हम लोग के टीचर के साथ भी ऐसे डिस्कस किया था, तो मतलब मैंने नहीं, उधर पेपर डिस्कशन जो गिविंग रैंडम क्वेश्चंस, उसमें से शी टोल्ड दैट फर्स्ट ऑप्शन वोंट बी द आंसर, तो थोड़ा ये हो गया आई थिंक। तो क्या उन्होंने क्या बोला? क्या क्या ऑप्शन उन्होंने करेक्ट? वो सेकंड ऑप्शन बोला, 2Fe plus 3H2। आई ऑल्सो डिडंट अंडरस्टैंड दैट, सो इसलिए अभी पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है, सही। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये क्या होता है? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को। सो ये हाँ रिएक्शन है बिटवीन आयरन एंड वाटर ना, जो बनाता है आयरन ऑक्साइड। की पॉइंट हाँ, इसके अंदर में है और हाइड्रोजन गैस, लेकिन ये मेटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है क्योंकि देयर इज नो मेटल रिप्लेसिंग अदर मेटल। मेटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? एक मेटल वनेडियम है, दूसरा मेटल कैल्शियम है, तो आयरन और वाटर में मेटल कौन सा है? आयरन आयरन और वाटर मेटल है। नहीं है। तो कैसे दिमाग चला तुम्हारी टीचर का? क्यों उल्टा पुल्टा पढ़ा? मुझे भी नहीं मालूम अभी। तुम्हारे टीचर को बोलना कि इसके अंदर में से कौन सा मेटल है वो निकालो। ओके, सो इट विल बी फर्स्ट ऑप्शन। यस। ओके, ओके, अभी 50 क्वेश्चन ना। कौन सा? 58? 55 55। 55। हाँ भैया, ये तो सब सिंपल सिंपल है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है अब भी हमने पढ़ा है। हाँ वही। क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेशन? ऑप्शन सेकंड, सेकंड ऑप्शन। यस, करेक्ट ओके, ऑप्शन। यस। 56 में भी ऑप्शन नंबर 2। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग ने उधर भी पढ़ा, उधर भी ये किया था क्या? फर्स्ट क्वेश्चन में। सो इट इज बेसिकली ये क्या बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन बोल रहे हो ना तुम? हाँ, सेकंड ऑप्शन। हाँ, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद 57 ऑप्शन नंबर 3, 5.2। 57 में क्या किया है? At 90 degrees Celsius, Kw is 10 raised to minus 10. Then pH of pure water at 90 degrees will be 90 degrees हाँ, Celsius. So pH 5.2 लिखा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा अच्छा, 57, 58 हाँ, आता है, पहले 58 बताओ। 58 का 4 है, ऑप्शन नंबर 4। -1, वाह, वेरी गुड, करेक्ट। हाँ मैम, ये 57 का मतलब थर्ड ऑप्शन है ना, 5. 57, हाँ मैं वही क्वेश्चन देख रही हूँ। 55 का pH ऑफ प्योर वाटर एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हुआ? 5.2। ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन नंबर 3।
ऑप्शन नंबर 3 कैसे लाए बेटा? क्यों, क्या आना चाहिए था? बताओ ना, ऑप्शन नंबर 3 लाए कैसे? मैं तो पूछ रही हूँ खाली, अच्छा, कैसे सॉल्व किया? बेसिकली आंसर करेक्ट है, सही है, अच्छा, सॉल्व कैसे किया है बता दो। बेसिकली पहले तो उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकाला हाइड्रोजन आयंस का प्योर वाटर हाँ में। फिर उसके हाँ बाद ये पीएच ऑफ प्योर वाटर निकाला। वैसे हाँ, वैसे किया है वो सब लॉग ओके, यूज करके, लॉग ठीक 10। है, करेक्ट है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट 59। which of the following will change the value of equilibrium constant? मैंने हाँ, ये लिखा, फोर्थ ऑप्शन, चेंज इन टेम्परेचर। कैसे फोर्थ ऑप्शन आया भाई? फोर्थ ऑप्शन अभी इक्विलिब्रियम यस, कांस्टेंट का टेम्परेचर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद वाला? इसके करेक्ट ही है ना, मतलब। हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। हाँ। फिर उसके बाद 60th क्वेश्चन, equilibrium constant for a reaction CO plus 2H2 gives CH3OH is 50 at a particular temperature. If हम्म equilibrium concentrations of CO and CH3OH are 2 times 10 raised to minus 1 and 2.5 into 10 raised to minus 2 moles respectively, then हम्म, equilibrium concentration of H2 is। मैंने हाँ ऑप्शन नंबर 4 लिखा है, 5 times 10 raised to minus 2 m। सॉल्व किया है इसको पूरा? सॉल्व किया था पेपर में। 5 into 10⁻²। ओके, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद 61st क्वेश्चन, ये तो हम लोग को पहले ही दिन मैम ने बताया था, मतलब एग्जाम के जस्ट पहले। तो मुझे ये याद था 61 का, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रो। हम लोग हम लोग ने तो पढ़ा ही नहीं है अभी ये टॉपिक ना। नहीं नहीं, ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, बट ये मैम ने ऐसे बोला था कि ये एग्जाम में आएगा, तो मैंने ऐसे लिख के रखा था, तो इसलिए वो बीच में याद है। क्या ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन जहाँ पे सब डबल बॉन्ड दिया हुआ है, Br विद ऑक्सीजन का एंड Br का सिंगल बॉन्ड्स दिया हुआ मैम ने सेकंड ऑप्शन बताया। है। हाँ, एक मिनट, 3, 5, 6, 7, 8। 2, 4, सेकंड के अंदर में ब्रोमीन में 7 होते हैं, अच्छा, ऐसे तो होगा। ये तो कौन सा ये रहेगा ऑप्शन? वही मैं तुम्हें पूछ रही हूँ, तुम बताओ। 7 मतलब क्या एग्जैक्टली? 7 बॉन्ड्स ना? 7 मतलब, हाँ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी तो तुम्हारी टीचर ने कैसे करेक्ट बताया ये? मैम मुझे नहीं मालूम, अभी वो नहीं आई है, नहीं आई है, ऐसा मतलब न्यू, नॉट की new। तो अभी हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है उनका टीचिंग का मेथड्स। ओके, तो उन्होंने सेकंड ऑप्शन रटवाया था हाँ, कि ऐसे सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके।
ओके। हाँ, 62 और 63 मैंने नहीं किया है। हाँ, उसमें मदद चाहिए। हाँ, एक सेकंड, अब तुम्हारा थोड़ा हैप्पीजर्ड आया मेरे पास, मुझे 62 63 निकालना है। मेरे पास ये कौन सा है, 85, ये 72, 62 अब आया। हाँ बेटा, इसमें हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक्स तो किए नहीं है, इसमें सीधा आंसर्स बता के मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पता है तो ना ये तो। तो ये सब टू बी एक्सप्लेन्ड ऐसे करके लिख दूं, तो हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग ने तुमने मेरे साथ इक्विलिब्रियम किया थोड़ी है कोई। ये रिवीजन नहीं किया था उसका, किया नहीं एग्जाम की डेज पहले। कि मुझे ध्यान नहीं है, किया है मुझे नहीं ध्यान नहीं, क्योंकि मैं ना, मेरे बहुत बच्चे केमिस्ट्री के तो बहुत हाँ कंफ्यूजन भाई। है ना। हाँ, हाँ, आई थिंक ऐसे किया है ऐसे। किया है तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बता दूंगी आंसर, लेकिन अगर इसका आंसर कितना है 62 वाले का। 62 वही तो मैंने सॉल्व नहीं किया है वो। 63 देखो, भी। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सी बेसिकली आपको क्या देखना है कि रिलेशनशिप होता है ना, स्टैंडर्ड जिप्स फ्री एनर्जी, तो इसको हम देते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के। अब हमको क्या करना है, के की वैल्यू है 100, टी की वैल्यू है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिस इज इक्वल टू 300 केल्विन, आर की वैल्यू है 8.314। अब ये डालो और कैलकुलेट करो डेल्टा जी की वैल्यू। चलो, ओके, इसकी ओके। वैल्यू कैलकुलेट करो कितनी आएगी बताओ।
मुझे ये करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 मिल रहा है, -11.5 किलो जूल। करेक्ट है, करेक्ट है। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 63 reversible reaction. So for the reversible reaction, NH4, it is converted into NH3 and H2S. हाँ Equilibrium pressure is 11 atmosphere. Then Kp is so देखो इसके अंदर में हाँ ना दो, इसके अंदर में NH4HS है वो ब्रेक डाउन हो रहा है into NH4 plus H2S. So दो gaseous molecule इन्वॉल्व हुए हैं, तो हम क्या लिखेंगे? We'll write Kp is equal to how much? ये Pressure of first option। NH2, pressure of H2S divided by pressure of NH4HS. NH4HS क्या है? सॉलिड है, राइट? हाँ राइट। तो जब NH4HS सॉलिड है तो इसका मतलब क्या होगा? जीरो, राइट? हाँ तो राइट राइट। जीरो क्या होगा? अगर Kp में डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो है तो दिस इज अनडिफाइंड. एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज व्हाट? इंफिनिटी, अनडिफाइंड. हम कोई भी चीज को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते. अरे गेटिंग हाँ यस आई एम गेटिंग। व्हाट यू आर गेटिंग? ये तो 63 का, हाँ बोलो बेटा. तो 63 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा ना? हाँ 63 का मैंने बोला ना, मैंने तुम्हें. हाँ ओके। 63 का हाँ, ये आएगा कैसे फर्स्ट ऑप्शन? देखो इसके अंदर में क्या दिया है कि PNH3 plus PH2S is equal to 11 atmosphere. बराबर. So partial pressure of NH3 will be is equal to partial pressure of H2S will be is equal to 11 by 2 atmosphere, and Kp will be given by PNH3 into PH2S. अब बताओ PNH3 into PH2S.
बेसिकली अभी सॉल्व किया है मैंने। हाँ ये जो सम है, तो उसमें पहले मैंने अभी एक्सप्रेशन फॉर के एफ निकाला, केपी इज इक्वल टू केपी, सॉरी नॉट के, केपी इज इक्वल टू पी NH3 टाइम्स PH2S। फिर उसके बाद टोटल हम्म इक्विलिब्रियम प्रेशर निकाला। फिर उसके हम्म बाद मैंने केपी कैलकुलेट किया है अभी। सो ओ, अभी वो 30.25 ATM स्क्वायर आया है। सो उसके बाद हाँ अभी क्लोजेस्ट मुझे फर्स्ट ऑप्शन ही लग रहा हाँ क्लोजेस्ट क्या आंसर ही वही है। है। ओके। आंसर ही वही आया है। हाँ तो 11 वही। बाई टू 11/2 क्लोजेस्ट क्या है, यही आएगा 121। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ओके। 64 बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। मैंने आंसर 3 लिखा है, ऑप्शन 3। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? होमोजेनियस मतलब ऐसे टोटली होमोजेनियस, पहले तो टोटली कंबाइंड मिक्सचर, थरोली कंबाइंड मिक्सचर मीनिंग है उसका। एंड उसके बाद अभी दिस होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, उसका मतलब ये है। इसका करेक्ट आंसर क्या आया? करेक्ट आंसर क्या बोला तुमने? और ऑप्शन नंबर 3। यस करेक्ट। ओके, अभी ये 65। हाँ For reaction FeO plus CO gives irreversible Fe plus CO2, Kp is equal to 0.5 आंसर क्या, equilibrium। हाँ, इसका आंसर क्या है? थर्ड ऑप्शन 1 ATM। इनिशियल प्रेशर कितना है सीओ का? 3। हाँ, और थर्ड ऑप्शन नॉट ये। Partial pressure of CO is 3 ATM. हाँ So equilibrium partial pressure of CO2 will be 1 ATM. यस करेक्ट। ओके फाइन। नेक्स्ट। फिर 66th क्वेश्चन। हाँ 66 का क्या होगा आंसर बोलो। 66 का आंसर ऑल्सो 432 ATM स्क्वायर। बराबर आता है ना? आता है। फिर उसके बाद 67, वीक हाँ मोनासिडिक बेस वाला। मैंने ऑप्शन नंबर 1% लिखा हुआ। कैसे? 1% की पॉइंट ना 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 ना, कैसे लिखा बताओ। हाँ, हाँ, मैंने ऐसे लिखा है। कैसे लिखा है टाका? बेसिकली इसका सॉल्यूशन में मैंने ऐसे लिखा है, हम्म P raised to n is equal to 10। हम्म फिर उसका P pH is equal to ये टोटल pH will be 14 minus 10 is equal to 4। उसके बाद ये OH minus will be 10 raised to minus 4 m which is moles for the हाँ weak base। हम्म फिर उसके बाद ये OH minus is
equal to alpha carbon. Alpha is equal to 10 raised to minus 4 upon 0.01 is equal to 10 raised to minus 2, है ना? उसके बाद ये वो सिग्मा सिग्मा अल्फा साइन is equal to 10 raised to minus 2 times 100 is equal to 1%. आंसर 0.1%। 0.1% कैसे आएगा मैम? 1% आएगा ना? नहीं, देखो इसके अंदर क्या है, हमने ना पीएच कैलकुलेट किया है। पीएच इज इक्वल टू ओएच का कितना पीएच होता है, पीएच है इज इक्वल टू 10 है, और पार्ट ओ पीओएच इज इक्वल टू 4 है। सो OH कितना होगा, OH1 माइनस विल बी इज इक्वल टू 10 to the power minus 4m। तो अब हम जब कैलकुलेट करेंगे फ्रैक्शन, तो इसके अंदर में बेस कितना है, बेस है 0.01 m। So concentration of OH1 minus is 10 to minus 4, which means परसेंटेज के अंदर हम क्या करेंगे, 10 raised to minus 4 divided by 0.01 into 100। करो। 0.01 है बेटा, ठीक है। अभी दूसरी स्टूडेंट ज्वाइन हो गई है। अच्छा, ठीक है, ओके। बाय।